everyone, welcome to the coaching talk show by Life's Honor. Today in this talk show we have another guest on the panel with Life's Honor, and the guest is so special. Before starting an introduction of guest, I would like to introduce one of the best thing that is very important for the society, and that is related the topic today we are going to cover in this talk show. Yes, I'm talking about expectant mother, pregnant women's very important part. Without mother, without women, we are nothing. So how we can deal with all stress things and all, and especially आज का जो टॉक शो है, ये टॉक शो उन सभी महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि प्रेग्नेंट है, एक्सपेक्टेंट है या इन फ्यूचर उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि वो अपने स्ट्रेस को किस तरीके से डील कर सकती हैं. So yes, today we have on board Dr. Preeti Maheshwari from Nagpur, MBBS and MS, and apart from that, one of the very good human being, one of the very enthusiastic person, and very special part. She is loving to help people and she is driving humanity. She is spreading happiness by her skill, by her profession, and that profession. Healthcare profession is not easy what we think, but we think, but you think it's not easy. So she is serving very, very dedicatedly. And trust me, my friends, today this talk show, you will get so many insightful information about how a gynecologist can really help so many pregnant women and so many people all around us. So they are very important for me. So, and for you also, obviously. So, welcome and thank you so much, Dr. Preeti, to join our that coaching talk show by Life's Honor, and it is our pleasure to have this amazing talk show with you today. Thank you so much for joining. Thank you, Arjun, for such a warm welcome. It's my pleasure to join you on this platform, and it will help a lot of expectant mothers, hopefully, with our conversation. Thank you. And I'm sure, you know, this coaching talk show will be, you know, one of the best talk show. और मैं ये talk show इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसलिए रखना चाहूँगा ताकि हमारे देश के 80 से 90% महिलाओं तक वो information, वो communication पहुँचे जो उनके लिए beneficial हो सकता है. So I will keep this coaching talk show in English and Hindi both. और जो लोग जो audience मेरी global बैठी है उनके लिए ये टॉक शो में सबटाइटलिंग करूंगा. So yes, this talk show I am going to start. So my first question with you, because you know, as a mental health professional, I personally believe, मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रेग्नेंट विमेन, एक एक्सपेक्टेंट विमेन के लिए एक मेंटल हेल्थ बेहतरीन होना बहुत जरूरी है एक बेस्ट डिलीवरी के लिए आफ्टर 9 months. You know, so my first question is this, because आप इस प्रोफेशन में काफी समय से हैं और आप एक डॉक्टर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ what inspire you to come in this profession? आपको ऐसी कौन सी चीज इंस्पायर करे इस प्रोफेशन में आने के लिए, डॉक्टर प्रीति? Since my childhood days only, I had a dream कि I should be in this noble profession so that मैं पब्लिक को हेल्प कर सकूं, एक sort of social service कर सकते हैं. वरना रूटीन लाइफ तो हर कोई फॉलो करता है, बट रूटीन से हट के टू बी इन अ प्रोफेशन टू हेल्प पीपल, दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी वांट्स. सो आई एम हियर टू हेल्प पीपल, टू सर्व पीपल, और बस आज यहाँ पे हैं उसी एम की वजह से. बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब एक डॉक्टर की सोच ऐसी होती है हमारे समाज में, क्योंकि डॉक्टर, टीचर, वकील और पुलिस, ये 3 से 4 प्रोफेशन ऐसे होते हैं जब अनकंडीशनली सेवा करते हैं, जब अनकंडीशनली सर्व करते हैं सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी का जो शेप और जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव तरीके से डेवलप होता है. और हमें बहुत खुशी है ऐसे डॉक्टर्स का हमारी सोसाइटी में होना जो इस तरीके की थॉट को कैरी करते हैं. डॉक्टर प्रीति, वी रियली हैट्स ऑफ टू यू, वी एज ए लाइफ ओनर फैमिली आल्सो. So yes, definitely, you know, you are serving for all women every day. और इसीलिए हम लाइफ ऑनर ने भी डिसाइड किया कि हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे जो कि इन सभी विमेन्स की हेल्प कर सके मेंटल हेल्थ को लेके, along with the help with all gynecologists. So you are a gynecologist
and helping so many women every day. So I would like to know कौन सा एक ऐसा common stress होता है एक expectant women के mindset में during the pregnancy, और उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हो उस expectant women को, how they can deal with it? देखिए अर्जुन, क्या होता है कि इन प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक तो एक फीमेल की बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसको एक फिजिकल स्ट्रेस रहता है। जैसे उसके हार्मोनल चेंजेस इतने रहते हैं, उसका वेट गेन होना, उसके मूड स्विंग्स होना, वॉमिटिंग होना, मोशन सिकनेस होना, तो ये सारे फिजिकल स्ट्रेस रहते हैं। दूसरा, उसका आजकल की मैक्सिमम वुमेन आर वर्किंग वुमेन, तो एक जगलिंग हमेशा क्रिएटेड रहती है बिटवीन करियर एंड होम एंड देन विद द न्यू प्रेगनेंसी आल्सो। तो वो एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि मैं मेरे बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी कि नहीं, ये सब कैसे होगा। एंड थर्डली, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर कि क्या मेरा बच्चा नॉर्मल हो पाएगा, क्या मैं पूरे 9 मंथ्स इसको कंटिन्यू कर पाऊंगी, कहीं ये मिसकैरेज में लैंड अप तो नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। फोर्थ थिंग, आजकल के जमाने में न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो एक सोशल सपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है। घर में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके एक या दो बच्चे, तो जब भी अगर फीमेल को कुछ प्रॉब्लम होती है, इफ शी इज मेंटली नॉट वेल, इफ शी इज फिजिकली नॉट वेल, कोई भी ये नहीं है कि दिल कम अप टू हर एंड आस्क हर, क्योंकि एक सोशल बॉन्डिंग की कमी हो गई है आजकल हमारी सोसाइटी में। नोबडी वांट्स टू स्टे इन जॉइंट फैमिली, जबकि ये जो पुराना कंसेप्ट था हमारा टू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता था आपको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। आजकल ज्यादा स्ट्रेस वाले वो लोग रहते हैं जो न्यूक्लियर हैं, क्योंकि उन्हें घर भी संभालना पड़ रहा है, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी भी संभालनी पड़ रही है, उन्हें अपनी फैमिली भी संभालनी पड़ रही है, प्लस बॉस का प्रेशर, प्लस घर का प्रेशर एंड एवरीथिंग। तो ये कुछ प्रेशर्स हैं, प्लस हार्मोनल चेंजेस तो ऑब्वियसली होते ही हैं। केमिकली अगर बात करें तो बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये सब चीजों के अप एंड डाउन की वजह से दे अफेक्ट अ फीमेल। दे हैव मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें अगर आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, हार्मनी नहीं रहती है आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में, या फिर आपकी और आपकी फैमिली के रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं रहती है, एवरीवेयर स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्लस आगे क्या होगा फ्यूचर को लेके एक वरी कि मेरा बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, हम उसकी फाइनेंशियल सारा पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आजकल क्या रहता है कि हर एक कपल को चाहिए कि हम हमारे बच्चे को एक बेस्ट स्कूलिंग दें, बेस्ट वो जो बोले हम उसको दें, एंड एवरी फैसिलिटी वी गिव इट टू हिम, एवरी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस, ये वो। तो एक बच्चे को अपब्रिंग करना भी इस सोसाइटी में बहुत बड़ा मींस एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो भी एक स्ट्रेस का कारण होता है आजकल की वुमेन को। ये तो हो गया जो वर्किंग वुमेन है वो। और इवन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जो घर में जो रहती हैं, जो हाउस वाइफ रहती हैं, उनपे भी बहुत स्ट्रेस है। उनको घर का सारा काम करना पड़ता है, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान देना पड़ता है, एंड इन सब चीजों में वो अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाती है। उन्हें जब भूख लगती है वो टाइम पे खा नहीं पाती हैं, प्लस उनको वॉमिटिंग, जो खाती है वो वॉमिट हो जाता है, प्लस डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, मेंटल इश्यूज रहते हैं, फिर पार्टनर की तरफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये सारी चीजों की वजह से मतलब देयर इज सम डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन द प्रेग्नेंट ग्रुप, इन दिस ग्रुप। और मेल का क्या रहता है, ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेल में स्ट्रेस नहीं रहता है, मेल में भी स्ट्रेस रहता है प्रेगनेंसी को लेके। बट मेल एक ऐसी चीज है हमारी इंडियन सोसाइटी में जिसको बहुत वैल्यू मिलती है कंपैरेटिवली, फीमेल्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। नो डाउट अपर क्लास में आप देखे होंगे मिलेगा, लेकिन जो लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उनमें आज भी फीमेल थोड़ी सी डिप्राइव्ड है, सोशली डिप्राइव्ड है। तो उनको न तो न सोशली सपोर्ट मिलता है उतना, न मेंटली उतना सपोर्ट मिलता है। तो दिस इज ऑल द रीजन ऑफ स्ट्रेस इन अ प्रेगनेंसी इन अ फीमेल। So absolutely, आपने बहुत अच्छे insights बोले, and I personally loved your all the inputs, because these kind of awareness in our society is very important, because the reason is that every day in our 140 crore of population in our country India, okay, हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बल्कि कितने सारे women ऐसी है जिनको ये भी अभी अवेयरनेस नहीं है
कि एक प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने मानसिक संतुलन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, यू नो मेंटल हेल्थ को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आज की डेट में जब हम हर वक्त हर प्लेटफॉर्म पे हर फोरम में मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और हर यूथ की, चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो एडल्टहुड हो, हर एज ग्रुप हर एक इंसान की बात करते हैं, वहां पे हम कभी भी प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं भूल सकते। हमें एक्सपेक्टेड वीमेन को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक एक फैक्ट ये भी है कि मोस्ट ऑफ टाइम एज पर द सर्वे व्हाट वी हैव डन एज ए लाइफ डोनर टीम, ओके, मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेंट वीमेन की स्किप की जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ फिजिकल पे फोकस ज्यादा होता है और मेंटल हेल्थ पे फोकस नहीं होता है। What do you think on this topic, Dr. Preeti? That is absolutely true because actually females को भी awareness नहीं होती है कि they are into some sort of depression or not, क्योंकि pregnancy के जो symptoms होते हैं, irritability हो गया, mood swings हो गया, physically fit नहीं होना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, loss of appetite, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, disturbances in sleep, तो ये सारी चीजें जब वो किसी के साथ डिस्कस करती हैं या फील करती हैं तो सबको ऐसा लगता है अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो हर प्रेगनेंसी में होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं रिगार्डिंग आर पर्सनल इश्यूज या आर जो भी हमको मेंटली मतलब सोचने पे मजबूर करता है, तो हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीजें जब लोगों के जब किसी काउंसलर के पास हम जाएंगे और जब हम बात करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि नहीं, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। हम सब फिजिकल हेल्थ पे कंसर्न रहते हैं, अरे दूध पीना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए, तुम एप्पल खाओ, तुम बनाना खाओ, लेकिन कोई प्रेग्नेंट वुमन को ये नहीं बोलेगा कि तुम मेडिटेशन करो, तुम काम रहो, तुम शांत रहो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, हम हैं, वील मैनेज एवरीथिंग फॉर यू। ऐसा बोलने वाला हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हर फैमिली को इस तरीके का एक मेंटल सपोर्ट देना चाहिए उन प्रेग्नेंट मदर्स को, क्योंकि कहते हैं हेल्दी मदर विल only give rise to a healthy daughter or a healthy son, which can be a good citizen for our country, good citizen and a good human being overall. इसलिए प्रेगनेंसी में मेंटल हेल्थ को उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए। This is what I feel. Absolutely, and I am also into that favor because you know pregnant women is one of the very obviously important पर्सन हम सबकी जिंदगी में, और जाहिर सी बात है हमें उनको उनकी मेंटल हेल्थ को भी उतनी इम्पोर्टेंट देनी चाहिए जितनी इम्पोर्टेंट हम सभी लोग हर चीजों को देते हैं। My next question to you, because every day as a doctor you are facing so many challenges. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की लाइफ बहुत इजी होती है, ऐसा नहीं है, खास करके गायनेकोलॉजिस्ट। जब मैं इमोशंस की बात करता हूँ, जब मैं फीलिंग्स की बात करता हूँ लाइफ कोचिंग में, सो हमेशा यू नो हम लोग एक एज ए ह्यूमन, राइट, हमारा माइंड और हमारी बॉडी और हमारे स्पिरिट जब तक तीनों तरीके से सिंक ना हो प्रॉपरली, हम फंक्शन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। और हमारे इमोशंस फीलिंग्स एक इंसान को, खास करके स्ट्रेंजर के लिए तो और ज्यादा डेवलप रहते हैं। तो हर रोज जब आप, जाहिर सी बात है ओटी में भी होते होंगे, ऑपरेशन थिएटर में, और हर रोज अपने प्रैक्टिस पे भी हैं आप, तो एक महिला, एक विमेन, एक प्रेग्नेंट विमेन के जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग होती है, राइट, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको कभी ना कहीं वो हर रोज डेली रूटीन में हिट करते होंगे, आपकी सेल्फ फीलिंग और इमोशंस को। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, एंड जैसा कि आई कैन अंडरस्टैंड यू नो एंड आई नो यू बेटर बिकॉज आप एक बहुत अच्छे इंसान है, गुड वुमेन है। सो जब एक खुद इंसान एक प्योर सॉल होता है तो उसके इमोशंस और ज्यादा कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट पर्सन के साथ। सो हाउ यू मैनेज दीज ऑल इमोशंस एवरी डे विद योर इमोशंस? See, Arjun, our role is to just support people in however way we can, and even this is the reason I joined this platform with you. Ki if I can impact a single woman's life, means that's a great job what I have done for me for the day. और ऐसा होता है, एक प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है वो बहुत तरह के इमोशन से गुजरती है ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एज वेल एज आफ्टर द डिलीवरी। अपने को लगता है कि नहीं, शी इज नॉट गोइंग टू एनी मेंटल स्ट्रेस, बट उसको स्ट्रेस होता है, उसको घर की भी चिंता होती है, उसको घर में रहने वाले अपने हस्बैंड की भी चिंता होती है, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसके बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया,
घर में उसका जो अगर एक पहले बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो उसके साथ उसकी स्कूल में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस एक न्यू सोल को जिसको वो अपब्रिंग कर रही है, because carrying a pregnancy is just to nurture a body, because we are nurturing a soul also. तो हमें उसमें भी कुछ वैल्यूज देने होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज है एक प्रेग्नेंट वुमन के सामने। प्लस उसको ये भी लगता है कि आगे जाके वो बच्चा, उसकी नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से होगी कि नहीं, या अगर सेक्शन होगा तो अच्छे से होगा कि नहीं, कहीं मिसकैरेज अबॉर्शन में तो न लैंड अप हो पाए। और डिलीवरी के बाद भी आजकल तो एक बहुत न्यू टर्मिनोलॉजी पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसको हम बोलने लग गए हैं, तो ये भी बहुत होता है। किसी को बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है, ना अपने आप में इंटरेस्ट होता है, ना अपनी बच्चे में इंटरेस्ट होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ये सारी चीजें बहुत बढ़ गई है। इसके लिए हमें एक मदर के मेंटल वेलबींग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, एक सपोर्ट देना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उस पर फिजिकल स्ट्रेस कम करना चाहिए, उसको मेंटल हेल्थ कम करना चाहिए। ये सिर्फ घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस वर्क प्लेस की भी है जहाँ पे वो काम करती है, ताकि वहां पे जो बॉस है उसको भी समझना चाहिए कि शी इज अ फीमेल, वो प्रेग्नेंट है, उसको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, उसको मतलब अगर मूड स्विंग्स हो रहे हो तो गिव हर टाइम, डोंट गिव हर डेडलाइन कि मुझे कल की कल ये वर्क कंप्लीट चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड हर, दे शुड अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, दे शुड अंडरस्टैंड हर फिजिक एंड देन दे शुड वर्क फॉर दैट। Absolutely, and I'm so happy to hear these kind of the statements coming from your side. The reason is that so many even when I was designing my this very exclusive program for pregnant women 9x9. So 9x9 is all about 9 months before delivery and 9 months after delivery mental health. We are taking care of all expected mother. Right. So during this program, we are covering so many things that obviously later on our lives on our team can share with all our audience and with everyone. So yeah, so when I was doing this survey for this program 9x9, so I met with, so you can say 50 plus gynecologists, right, all over India. And my survey was one of the very, very, very different survey, because हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम डिजाइन किया, तो ये प्रोग्राम उस के बेस पे डिजाइन किया है जो एक गायनेकोलॉजिस्ट की थॉट है, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट सोचती है, जो एक मदर सोचती है, एक्सपेक्टेड मदर बिफोर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी टू। सो हमने ओवरऑल एक बहुत अच्छा सर्वे करा और बहुत अच्छे इनपुट्स निकले। आपने जो अभी आंसर दिया मेरे इस क्वेश्चन का, ये आंसर एक्जैक्टली बिल्कुल मैच कर रहा है मेरे उसी सर्वे के साथ। इससे ये पता चलता है कि आप रियली कितनी एक्सपर्टीज कैरी कर रहे हैं अपने डोमेन के अंदर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज हमारे इस पैनल पे आप हैं और अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू आप उन सभी यूजर्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं, उन शहरों में, उन गांव में जो आज इस वीडियो को बैठ कर देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि मेंटल हेल्थ, मानसिक संतुलन कितना जरूरी है, एक गायनेकोलॉजिस्ट की थॉट कितनी जरूरी है, और एक गायनेकोलॉजिस्ट आपकी लाइफ में अगर डॉक्टर प्रीति जैसी है तो किस लेवल का चेंज ला सकते हैं। सो रियली वेरी नाइस इनपुट ऑन दैट। सो अभी मैं जैसे 9x9 की बात कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ, हम लोग लाइफ ऑन फैमिली में हमेशा डॉक्टर प्रीति हम सोचते हैं कि हम लोग हर ग्रुप के लिए काम करें, ना कि सिर्फ एक ग्रुप, ना कि सिर्फ जस्ट एजुकेशन सिस्टम और जस्ट हॉस्पिटैलिटी और जस्ट हॉस्पिटल और जस्ट कॉर्पोरेट। We always try to work with every group with different kind of expertise. इसीलिए हमारे पास जो टीम है वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ वर्क करती है एंड वर्सेटाइल तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो अभी रिसेंटली जैसा कि हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया मेंटल हेल्थ का 9x9, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये जो मेंटल वेलनेस, माइंड वेलनेस का एक प्रोग्राम है जो हमने स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन के लिए डिजाइन किया है 9x9, जो 18 महीने का प्रोग्राम है इन प्रेग्नेंट विमेन्स के लिए। ओके, सो आपको क्या लगता है ये प्रोग्राम कितना बेनिफिशियल हो सकता है प्रेग्नेंट विमेन को, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस उनके लिए है या नहीं? What is your thought on it? देखिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए प्रेगनेंसी में तो बिगिन विद कि हम कैसे रिलीव कर सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है एक मेडिटेशन का, एक एक्सरसाइजेस का, योगा का। तो आप इस प्रोग्राम में यू टीच पीपल हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू लिव अ स्ट्रेसफुल लाइफ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत योगा। तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम बहुत हेल्पफुल है उन फीमेल्स के लिए जो एक्सपेक्ट कर रही हैं
क्योंकि अगर 1 आवर मॉर्निंग में या 1 आवर इवनिंग में अगर आप दे पाए तो यू विल बी वेरी, मतलब आप अपनी एक सोल जो आप नर्चर कर रहे हो उसमें आप गुड वैल्यूज डाल सकते हो। आजकल तो गर्भ संस्कार का बहुत ही वो है, तो ये गर्भ संस्कार एक्चुअली होता है जब आप मेडिटेट करते हो, तो आप वो सारी क्वालिटीज, बीइंग पीसफुल, बीइंग ब्लिसफुल, बीइंग हेल्पफुल, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सोल, आप ये सारी क्वालिटीज अपनी उस बेबी में डाल रहे हो। बिकॉज इट इज सेड ना कि अ मदर इज नॉट वन सोल, इट इज टू सोल्स इन वन बॉडी। यही नाम है प्रेगनेंसी का। बिकॉज और इसीलिए तो माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है, बिकॉज शी इज नर्चरिंग द सोल, शी इज नर्चरिंग द बॉडी ऑल्सो एंड शी इज नर्चरिंग द सोल ऑल्सो। तो हर प्रेग्नेंट फीमेल को कुछ ना कुछ टाइम निकाल के दिन भर में 1 घंटा मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि शी कैन इनकलकेट दोज क्वालिटीज इनटू द सोल। क्योंकि हम सिर्फ बाहरी दुनिया पे ध्यान देना चाह रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बॉडी की अपब्रिंगिंग पे ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि हम बोले कि हम एक प्रेग्नेंट फीमेल की सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हम उसको ये खिला रहे हैं, हम बोल रहे दूध पी लो, हम बोल रहे खाना खा लो, हम बोल रहे प्रोटीन डाइट लो, हम बोले अंडा खाओ, हम बोल रहे फ्रूट्स खाओ, एप्पल खाओ, वगैरह वगैरह एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन हम कभी उसको ये नहीं बोलते कि तुम शांति से 1 घंटा बैठो, तुम स्ट्रेस फ्री रहो, तुम रिलैक्स रहो, तुम मेडिटेशन करो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर वो मेंटली फिट रहेगी तो ही उसका होने वाला बच्चा भी मेंटली फिट रहेगा। ही विल बी अ नाइस सोल। और एक सोल की अपब्रिंगिंग भी जरूरी होती है, ना सिर्फ बॉडी की अपब्रिंगिंग जरूरी होती है। तो इसके लिए और आप लोग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा लोगों को सजेशन, मतलब एक है कि दे कैन जॉइन बाय दिस 9x9 प्रोग्राम। वो लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन वाला है, थोड़ा प्रेग्नेंट मदर्स को हेल्प मिलेगी। सो इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म अर्जुन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम विद यू। Thank you so much, Dr. Preeti, and your words is really always very motivational for me and complete lives on a family. And we are also very proud of you. Also, you are also in panel with us with this lives of the family, and that's a part. हम लोग जब एक साथ आते हैं, सोसाइटी को सर्व करते हैं, एक बेटर वर्ल्ड बनाते हैं और एक बेटर लाइफ जीते हैं। क्योंकि हर रोज कंप्लेन करना बहुत इजी है और हर रोज पॉजिटिव लाइफ जीना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जिए अच्छा है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सॉरी टू इंटरप्ट, आपने जो बोला कि हर रोज कंप्लेन करना बहुत इजी है, मैं उस पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम हमेशा कंप्लेन करते हैं, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। जरा सा 5 मिनट हम अगर ये सोचे कि उसने ऐसा क्यों किया, बशर्ते कि उसने ऐसा किया पे ध्यान देते हैं हम। हो सकता है वो परेशान होगा, फिजिकली ही माइट नॉट बी वेल, मेंटली ही माइट नॉट बी वेल, कुछ हुआ होगा। अगर प्रेग्नेंट फीमेल की भी बात करते हैं, उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। एक अगर मेल को छोटा सा कट लग जाता है या छोटा सा कुछ हो जाता है, तो हम कितना बोलते हैं कि नहीं यार वो बीमार है। अरे प्रेगनेंसी में तो इतने हार्मोन्स की उथल पुथल हो रही है बॉडी के अंदर, उसको नहीं उसका फर्क पड़ेगा, उसको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, उसको मतलब उसको एक बॉडी को भी, एक बच्चे को भी एक सर्व करना है, खुद की बॉडी को भी सर्व करना है, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, ऊपर से फैमिली का प्रेशर, ये करो ये मत करो। और आज भी कितना भी बोले, बैकवर्ड सोसाइटीज में आज भी है कि इफ अ फीमेल इज हैविंग 2 फीमेल डॉटर्स, तो रहेगा कि नहीं बेटा होना चाहिए, जबकि उसमें एक फीमेल की कोई गलती भी नहीं होती है। लेकिन अगेन दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रेशर। तो हमें इन सब चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उसको जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उन चीजों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे ज्यादा रोल होता है एक स्पाउस का और अपनी फैमिली का। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मूड स्विंग्स एंड स्पेशली द सपोर्ट ऑफ स्पाउस। एंड आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग, यू नो, स्पाउस सपोर्ट के बगैर एक अच्छी डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक डिलीवरी एक माँ की नहीं होती है, डिलीवरी एक माँ एंड फादर दोनों की होती है। मदर एंड फादर दोनों का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फादर का क्या रोल होता है, उस चीज को एक फादर को भी समझना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ ए विमेन उनको सपोर्ट करना चाहिए, मॉरल सपोर्ट कीजिए, इमोशनल सपोर्ट कीजिए, एंड कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने पार्टनर को एक बच्चे की तरह ट्रीट करिए उस 9 महीने तक, ठीक उस बच्चे की तरह जो वो एक बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं। क्योंकि जब एक माँ बनती है एक फीमेल, राइट, तो ठीक उसी तरह उसको ट्रीट करिए। आप देखिए आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे उसी बच्चे की तरह बनेगा जो 9 महीने आप अपनी
पार्टनर को उस बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं. सो दैट इज माय थॉट. सीरियसली अर्जुन, क्योंकि क्या होता है ये हम भी देखते हैं आजकल सब पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है, मेरा बच्चा बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाता है, मेरा बच्चा इतना चिड़चिड़ा हो गया, मेरा बच्चा इतना जिद्दी हो गया. बट वो ये भूल जाते हैं कि जब वो प्रेग्नेंट थे तो ऑलवेज मैक्सिमम टाइम्स वो लोग स्क्रीन के सामने रहते थे, तो यही तो संस्कार उस बच्चे में जा रहे हैं. तो इसलिए अब अगर वो मोबाइल देख रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? अगर वो चिड़चिड़ा अब हो रहा है तो गलती क्या है? अगर वो प्रेगनेंसी में जब मदर प्रेग्नेंट है, जब वो बच्चा सारे टाइम वही वाइब्रेशन उसको मिल रही है, जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसमें मदर इधर उधर भाग रही है, जो एकदम मदर को चिंता हो रही है, वरीज हो गई, टेंशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, जब उस बच्चे को वही सब वाइब्रेशंस फील होगी तो वो कहाँ से फियरलेस होगा, वो कहाँ से स्ट्रांग बनेगा, वो कहाँ से कम इरिटेबल होगा. तो एवरी टाइम हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, क्योंकि हम अगर 50 थॉट भी क्रिएट कर देंगे कि नहीं मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा कृष्ण जैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा मतलब 10 नंबर ऑफ लॉर्ड्स के नाम लेके अगर हम बोल देंगे मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, वो ठीक है, वो 50 टाइम्स हमने बोला, लेकिन दिन भर में चारों तरफ अगर तुम्हारे टेंशन, स्ट्रेस, वरी, भागा दौड़ी, घर में झगड़ा, इरिटेशन, यही सब चलता रहेगा तो मैक्सिमम एनर्जी तो नेगेटिव ही रहेगी. जब इतनी नेगेटिव एनर्जी में आप एक सोल को अपब्रिंग कर रहे हो तो वो सोल भी तो नेगेटिव ही होती जाएगी ना. और दूसरी चीज, कमिंग टू द मेडिकल एस्पेक्ट, जब अगर ये डिप्रेशन इन प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, अगर ये एक एक्सपेक्टेंट मदर को रहता है तो दिस इज इंक्रीजिंग द चांसेस फॉर मिसकैरेज, दिस इज इंक्रीजिंग द चांसेस फॉर अबॉर्शन, और ये स्ट्रेस लेते लेते दिस इज क्रिएटिंग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं बीपी बढ़ गया प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से फीमेल को झटके आ सकते हैं, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, ब्लीडिंग का इशू हो सकता है, इनफैक्ट वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है फीमेल के लिए. तो आप सोचिए कि आजकल की जमाने में जहाँ इतना स्ट्रेस है, इतना हैवक है हियर एंड देयर, एक प्रेग्नेंट फीमेल को कितना ज्यादा मेंटल पीस की जरूरत है. So it is a responsibility of the entire nation, means the every family, every husband, every workplace, कि हम एक गुड मदर क्रिएट करें, हम एक मदर को पीसफुल एनवायरनमेंट दे ताकि हम एक नई अच्छी सोल को अपब्रिंग कर सकें, क्योंकि तभी तो वील क्रिएट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस जो हम चाहते हैं. Absolutely, absolutely, and completely agreed with your thoughts. And that is the reason, you know, we personally believe it's not all about just mother; it's all about the contribution of father. So my next question to you, because you know we have a very limited time this talk show, because we have to give the series of this talk show so that हमारे audience pieces में understand कर पाए. आज ये you know master class 1 episode 1 है everyone. So that is episode 1 में आप एक introductory section by Dr. Preeti and me, and you can understand, you know, a complete thought what is Preeti, Dr. Preeti is talking about. It's very good, right? Next episode में Dr. Preeti और insightful discuss करेंगी. But मेरा जो last question है, बहुत quick question. लाइक यू नो हम लोग बात करते हैं इमोशंस की, हम लोग बात करते हैं फीलिंग्स की, और एक मदर के इमोशन फीलिंग्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बहुत जरूरी है हमारे समाज में, उसको बेहतर रखना. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में भी काफी चैलेंज ऑब्वियसली आते हैं, दैट विल ऑब्वियसली डिस्कस आफ्टर दिस एपिसोड इन नेक्स्ट एपिसोड फॉर पोस्ट प्रेगनेंसी पार्ट 2. ओके, सो वुड लाइक टू नो एज पर your thought, what is your views about Lives Honor? What is your thought for Lives Honor organization? Lives Honor organization is a great platform. It's helping people, is doing great for the society, creating good souls and mind wellness, well-being for them. So it's a very nice platform. And I feel कि अगर किसी female को या even अगर किसी male को, if they are feeling depressed, परेशान है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, recognize your symptoms, approach a counselor, and very nice, come to Lives Honor. We are here to guide you through the path of your journey. We'll help you, and don't hesitate in discussing your symptoms. Come up, because यही चीजें आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, साइकोसिस में क्रिएट होती है, एंड दे आर लीडिंग टू सुसाइड,
सुसाइडल टेंडेंसीज और ये सब, तो हमें इसको एक इनिशियल स्टेप पे कंट्रोल करना चाहिए। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है हमारी ऑडियंस से, इवन इफ यू फील द स्लाइटेस्ट ऑफ द सिम्टम्स, प्लीज कम अप, प्लीज टॉक, प्लीज स्पीक अप अबाउट इट एंड take some guidance if you're not able to solve your problems by yourself. Absolutely. And as you know, we have already, as I have already mentioned, Dr. Preeti is also with us. So definitely, it will be great opportunity, everyone, for you to have a great consultant and great coaching from her also on this part. Because I personally believe, जब आप अच्छे लोगों के पास जाएंगे, अच्छे लोग तो सभी अच्छे होते हैं, अच्छी सोच के पास जाएंगे, तो आपकी एक सोच बेहतर बनेगी। जब आपकी एक सोच बेहतर बनेगी, तो आप हर रोज बेहतर बनेंगे। तो हर रोज बेहतर बनने के लिए एक सोच बेहतर बनाइए, और एक सोच बेहतर बनाने के लिए एक अच्छे इंसान के साथ हर रोज कनेक्ट करिए। लाइक जैसा मैं आज आप लोगों के साथ प्रीति जी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर प्रीति एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ना कि एज ए गायनेकोलॉजिस्ट अपनी एक्सपर्टीज गेन की है, बल्कि उससे इम्पोर्टेंट, गायनेकोलॉजिस्ट से इम्पोर्टेंट एक एक्सपर्टीज है जो उन्होंने गेन करी है, वो है ह्यूमैनिटी। दैट्स व्हाई वी आर हियर विद अस, विद डॉक्टर प्रीति, यू नो, क्योंकि उनकी ह्यूमैनिटी ही है जिसके कारण आज हम लोग आपके लिए एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं और आपकी कहीं ना कहीं हेल्प कर पा रहे हैं, सर्व कर पा रहे हैं। नहीं तो कुछ डॉक्टर्स जिनके पास टाइम नहीं है सोसाइटी के लिए, ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ डॉक्टर्स के साथ है, लेकिन यस स्टिल हमारी सोसाइटी में अभी भी डॉक्टर प्रीति जैसे डॉक्टर हैं जो अनकंडीशनली सर्व करने के लिए तैयार है। एंड डॉक्टर प्रीति, वी रियली हैट्स ऑफ टू यू and your work, whatever you are serving for our nation, for our society, for our people, that is really very appreciated, because बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी अच्छी सोच रखते हैं, और आपकी इस ऐसी अच्छी सोच को बिफोर स्टार्टिंग दिस अगस्त ऑफ इंडिपेंडेंस मंथ हम लोग रियली सैल्यूट करते हैं। एंड हम उम्मीद करेंगे आने वाला मंथ आजादी का एक नए तरीके से हम इन लोगों के लिए एपिसोड्स में लेके आए आपके साथ, सो दैट ये हमारी जो ऑडियंस है हर सोच से, हर थॉट से ऐसी जगह से आजाद हो जहां पे वो अपने नए बेटर ब्राइट फ्यूचर को डेवलप कर सके। So really thank you so much Dr. Preeti for joining our talk show. I hope you enjoyed this talk show, and it's my pleasure to have you once again in next episode. And apart from to give Dr. Preeti, thank you Lord, thank you everyone for really wonderful टाइम। ऐसी सपोर्ट करते रहिए और कोशिश करिए चीजों को अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में बेहतर बनाने के लिए। डॉक्टर प्रीति, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? Thank you so much, Doctor. Thank you so much, Mr. Arjun, to give me an opportunity to come on this platform to talk to them, to talk to people. It was a nice platform for me also to come and share my views with the viewers. So, thank you so much. My pleasure, and you're always welcome. And thank you everyone for joining the coaching talk show by Life's Honor. And we'll meet once again in next episode. तब तक के लिए इस एपिसोड को सुनिए और जितने आपके सर्कल में प्रेग्नेंट विमेन्स हैं उनके साथ शेयर करिए, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो। और फॉर डिटेल अगर आप 9x9 प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, how we can help you personally, so you can visit our website www.lifezhonour.com. I'm repeating again, www.lifezhonour.com. You can visit our website, you can contact us, me, Preeti ji, and we all are here to serve you. Thank you so much. Thank you, Preeti ji. Thank you, everyone. Take care. Bye bye. Namaste. Thank you. Thank you.